Hello students, I am GUNVANT PATEL from Logic Institute and today I am with the next lecture of electrostatics. In this lecture, we will study about our next topic, that is electrostatic potential energy of charges. ओके बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. Here potential energy is one kind of stored energy, but potential is a stored energy per unit charge, and here the energy of any system of charge, it's very simplest. So हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज के अंदर एनर्जी तभी स्टोर हो सकता है whenever the work is done on that particular charge or any object. अगर किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हो, देन यू हैव टू वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज. ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे कैसे डिफाइन होगा? एकदम सिंपल सा है. द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी पॉजिटिव चार्ज, द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करके लाना है. You have to apply some kind of external force on it, so that's why some kind of energy is stored in that particular charge, and that energy is known as what? Potential energy of the charge. तो वही लिखा है यहाँ पे, the work required to bring any positive charge from infinity to given point of electric field and against it मतलब against the electric field, then the work done, that is it is called potential energy of system of charges. वो पर्टिकुलर एक चार्ज का एनर्जी नहीं हो सकता, इट्स अ एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वो पर्टिकुलर चार्ज को ला रहे हो, वो चार्ज और वो सिस्टम दोनों का पोटेंशियल एनर्जी होता है. ठीक है ना बच्चों? इट्स सिमिलर, वेरी सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. Because in case of potential we define like this, the work required to bring a unit positive charge. तब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन फाइंड किया था. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एनी पॉजिटिव चार्ज. इट्स वेरी सिंपल. सो लाइक दिस हम देख सकते हैं कि वेन एवर कंसिडर दिस इज द वन काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन in which any charge capital Q is placed on this origin, and we have to bring any positive charge, that is Q, from infinity to the given point of electric field. ये Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें हमें P पॉइंट पे ये Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आना है. लेट अस कंसिडर दिस होल पाथ इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल एलिमेंट, दैट इज dr. वो तो वैसे ही हो गया जैसे हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था. तो लाइकवाइज वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एकदम सिंपल सा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट पॉइंट P is given by UP is equals to, that is the work required to bring from infinity to the given point against the electric field. That's why it is taken what? Negative. And it is defined like this: minus infinity to P any positive charge, and here Q is taken charge. That's why QE, because work done is equal to what? Force into displacement. और यहाँ पे force F equal to क्या होगा? QE. That means potential energy of system of charges at point P is like this. We can say that minus integration from infinity to P
we have to put the value of f. F is equals to QE, so that is Q into E. It's a similar that of potential into dr. बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों. So that's why UP, that is potential energy at point P. Now you can define like this, UP is equals to Q को आप कॉमन ले लो, and we know that minus integration infinity to P E dot dr. And in this case we know that this is the expression for the potential at point P. That's why Q VP, Q into what? VP, that is potential at point P, where VP is equals to minus integration infinity to P E dot dr. It's very simplest. देखो बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो गया. एंड यू कैन से दैट Vp इज इक्वल्स टू व्हाट? UP डिवाइडेड बाय Q, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो जाएगा, वही हो गया. और अगर आपको Q अमाउंट ऑफ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा तो वो पर्टिकुलर प्लेस का पोटेंशियल से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो पोटेंशियल एनर्जी UP इज इक्वल टू Q इंटू VP. इट्स वेरी सिंपलेस्ट, ठीक है ना बच्चों. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट at point P. This is the expression for electrostatic potential energy, electrostatic potential energy of system of charges at point P. It's very simplest. क्लियर बच्चों. अब इसको हम थोड़ा और ज़्यादा डिराइव करेंगे. इन दैट केस लाइकवाइज वी विल राइट, इट्स वेरी सिंपलेस्ट. प्लीज ध्यान दीजिएगा. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि अगर मान लो जो भी चार्ज रखा गया है, 2 चार्जेस और 3 चार्जेस और 4 चार्जेस, वट एवर नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ चार्ज. तो बहुत सिंपल सा होगा. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द एब्सेंस of external electric field, एकदम सिंपल सा है बच्चों. मान लो वी आर ब्रिंगिंग 3 charges at certain region. What is the amount of potential energy of that system of charge? एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है. अब ध्यान दीजिएगा. मान लो वी आर ब्रिंगिंग एनी चार्ज Q1 at point A. अब यहां पे देखो, इफ यू वांट टू ब्रिंग दिस Q1 फ्रॉम infinity to the given point A, and we know that A is in the absence of electric field, मतलब यहाँ पे पहले से किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. अगर ऐसा होगा then the potential at point A is 0, क्योंकि A is not in the electric field, so A के पास पोटेंशियल 0 होगा. तो हम लिखेंगे एकदम सिंपल सा है, the potential at point A, potential at point A is VA equals to 0 because of it is in the absence of external electric field. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो we don't have do any kind of work.
टू ब्रिंग दिस Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। हमें यहाँ पे किसी भी चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन टू ब्रिंग Q1 at point A is W1 is equals to Q1 into VA। जैसे हमने अभी देखा, whenever we have to find the potential energy or work done, so the common formula is Q into V. If you want to find the work done at point P or the potential at point P, potential energy at point P, then Q into potential at that point। जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन फाइंड करना होगा, तो हमें क्या करना है, द चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मान लो बी पॉइंट पे हमें कोई चार्ज Q को लेके आना है। इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, जिस चार्ज को आप ला रहे हो उसके साथ जिस पॉइंट पे ला रहे हो वो पॉइंट का पोटेंशियल से आप मल्टीप्लाई कर लो, द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब ये पॉइंट पे पोटेंशियल किसी और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि ये चार्ज को तो हम बाहर से ला रहे हैं। तो बी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल मिलेगा इज ड्यू टू सम अदर सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी सिंगल चार्ज का हो सकता है या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस का हो सकता है, वॉट एवर वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट B, इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप ला रहे हो वही पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। अब यहाँ पे हम Q1 को कहाँ लेके आ रहे हैं, A पॉइंट पे। सो दैट्स वाई वी रिक्वायर द पोटेंशियल एट पॉइंट A, and at point A potential is 0. So the work done to bring this Q1 from infinity to this point A, to bring Q1 from infinity to point A is W1 is equals to Q1 into VA equal to 0। that's why this work done becomes 0। हमें कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे बच्चों, मतलब A पॉइंट पे हम Q1 को लेके आ गए, बिकॉज A पॉइंट जहाँ पे था वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो A पॉइंट के पास कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा। हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फील्ड ही नहीं है। दैट्स वाई द पोटेंशियल एट पॉइंट इज 0 एंड दैट्स वाई द वर्क डन बिकम्स 0। अब हम क्या करेंगे, हमें तो थ्री चार्जेस का सिस्टम हमने सोचा हुआ है। मान लो वी विल ब्रिंग Q2 चार्ज एट पॉइंट B। अब हमने किसी और पॉइंट B को वही रीजन में कंसिडर किया। अब क्या होगा, अब this point B is in the electric field of this charge Q1। अब Q1 क्या करेगा, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेल करना स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि पहले कोई नहीं था, फिर Q1 आ गया। Q1 ने अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लिया। मतलब अब यहाँ पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक दूसरा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं B। मतलब B पॉइंट के पास जो भी पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस चार्ज Q1, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे B के पास कोई ना कोई पोटेंशियल बनने वाला है। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ/R। अगर मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द चार्ज। मतलब B पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड कर रहा है ड्यू टू चार्ज Q1, तो Q1 से B का डिस्टेंस चाहिए। लेट अस कंसिडर दिस डिस्टेंस विल बी, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे दिस डिस्टेंस विल बी R12।
हम ये डिस्टेंस को r12 कंसिडर करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज q1 एंड चार्ज q2. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज इज r12. सो दैट्स वाई अब सिंपल सा होगा कि अगर मुझे q2 को b के पास लेके आना है, एंड फॉर दैट if I want to find the work done, that time first I have to find the potential at point B. जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट A फाइंड किया, फिर A के पास Q1 को लेके आए तो हमने Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट A किया. तब हमें Q2 को B के पास लाना है तो हमें क्या करना होगा, B का पोटेंशियल फाइंड करो, फिर Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ B. सिंपल सा है, तो लिखेंगे द पोटेंशियल at point B is VB is equals to this potential is due to charge Q1, and we know that the potential of charge Q at point P, that is at distance R, is given by Vp is equals to KQ by R. We had already studied, हमें पता है ये सब, ठीक है ना बच्चों. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का डिराइव किया था. तो यहाँ पे क्या होगा, Vb इज इक्वल टू पोटेंशियल किसका, Q1 का. सो KQ1 पोटेंशियल डी टू Q1, दैट्स वाई KQ1, और डिस्टेंस क्या है R12. चलो Vb मिल गया. मतलब हमने अगर Q2 को B के पास लाना है तो हमने क्या किया, B का पोटेंशियल फाइंड कर लिया. अब जैसे ही B का पोटेंशियल मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब वर्क डन फाइंड करेंगे. तो लिखेंगे द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, सेम स्टेटमेंट, बट यहां पे क्या होगा, वर्क डन दैट इज W2. So infinity to point B is W2 is equals to the amount of charge. Q2 को ला रहे, कहाँ पे ला रहे, B पॉइंट पे, that's why potential at point B. So is equals to Q2 into what is VB? VB is equal to KQ1 by R12. So that's why KQ1 Q2 divided by R12 हम यहाँ पे लिख सकते हैं. Therefore W2 is equals to KQ1 Q2 divided by R12. This is result 1. This is result 2. This is the one kind of system of two charges. अब मान लो हमें कोई थर्ड चार्ज को भी लेके आना है. Let us consider we have to bring third charge. अगर हमें दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा तो अब हम यहाँ पे दोनों वर्क डन को प्लस कर लेंगे. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दैट इज W1 प्लस W2. दोनों चार्जेस को लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पे W1 क्या था, 0, मतलब सिंगल चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. W2 सेकेंड चार्ज का मिल गया हमें कुछ ना कुछ, मतलब टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2. W1 तो 0 है, 0 प्लस दिस, ये क्या है, KQ1 Q2 by R12. दैट्स वाई टोटल वर्क डन इज KQ1 Q2 by R12, एंड दैट वर्क डन is stored in the form of potential energy. So the potential energy of system of two charges is what, लिख सकते हैं हम. So therefore the net work done W is equals to W1 plus W2. W1 0, W2 is KQ1 Q2 by R12, and this is the 0 के साथ आप प्लस करोगे तो वही वैल्यू मिलेगा. दिस इज द नेट वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy. Thus the potential energy of
system of two charges U is equals to W net work done, that is K Q1 Q2 by R12. सिंपल सा है. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. अगर मान लो हमें सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस दिया होगा तब क्या करना होगा? इट्स सिंपल इज. तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. अब मान लो अगर हम थर्ड चार्ज को यहाँ पे लेके आए Q3 एट पॉइंट C. अब यू कैन सी दैट नाउ, जैसे पहले हमने Q1 को लेके आए थे तब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. जब Q2 को लेके आए तब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. अब हम पॉइंट C को कंसिडर करें. दिस पॉइंट C इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2 बोथ. दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रिवेल होगा और वो दोनों का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका समेशन होगा, उसमें C पॉइंट. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एट पॉइंट C द पोटेंशियल इज ड्यू टू Q1 एज वेल एज पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट Q2. दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल मिलेगा. जैसे हमने B पॉइंट को जब यहाँ पे लेके आए थे, B पॉइंट को कंसिडर किया था तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 लिया था, लेकिन अब जो C पॉइंट है वो दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. दैट्स वाई potential at point C is due to potential of charge Q1 as well as potential of charge Q2. ठीक है ना बच्चों, दोनों का पोटेंशियल लेना पड़ेगा. एकदम सिंपल सा है. ठीक है, तो ऐसा होगा द पोटेंशियल एट पॉइंट C is Vc is equals to potential due to this charge Q1, and let us consider the distance of point C. Distance of point C from Q1 is considered as R13. एकदम सिंपल सा है. and distance of C from this charge Q2 is R23. let us consider, मतलब C पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 की वजह से होगा तो K Q1 बाय डिस्टेंस इज व्हाट R13. so K Q1 by R13 plus Q2 की वजह से that is K Q2 by R23. C पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया हमें. The potential at point C is due to charge Q1 and Q2 both. वही रूल हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे चार्ज को लेके आना है वो पॉइंट का पोटेंशियल, और फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. तो यहां पे भी ऐसे ही होगा. द वर्क डन टू ब्रिंग Q3 from infinity to point C is W3 is equals to Q3 into C, Q3 into potential at point C. ठीक है ना बच्चों, बहुत सिंपल सा है. अब हम क्या करेंगे, Vc का वैल्यू वहां पे पुट करेंगे. ठीक है ना. फिर द टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे, तीनों W1 प्लस W2 प्लस W3, और फिर दिस टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब दैट इज द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. एकदम सिंपल सा होगा. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो. तो हम आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना बच्चों. तो अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बाद में कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके कर सकते हो आप. चलो ठीक है. अब हम क्या करेंगे, द नेट वर्क डन W is equals to W1 plus W2 plus W3. W1 is equals to 0, already derived.
जब भी आपको जितने भी चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा तो स्टार्टिंग करो पहले फर्स्ट चार्ज से, फिर सेकंड चार्ज को लेके आओ उसका वर्क डन, थर्ड चार्ज को लेके आओ उसका वर्क डन, फोर्थ चार्ज को लेके उसका वर्क डन, फिर चारों वर्क डन का प्लस कर लो एंड द नेट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे ही करना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी Q1 के लिए फाइंड किया था वर्क डन, Q2 के लिए फाइंड किया था, तो हमें वापस यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया, सी पॉइंट पे जो Q3 को ला रहे उसका वर्क डन फाइंड किया और उसके साथ प्लस कर लेंगे। W2 इज इक्वल्स टू वॉट, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। W3 इज इक्वल टू एकदम सिंपल Q3 इंटू VC। What is the value of VC? You can see that KQ1 by R13, KQ2 by R23। चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा Q1 Q3, you can see that KQ1 Q3 divided by R13 plus KQ2 Q3 divided by R23 is equals to KQ1 Q2 divided by R12 plus KQ1 Q3 divided by R13 plus KQ2 Q3 divided by R23। This is the net work done to arrange all these charges। ठीक है ना बच्चों? So this whole work done is stored in the form of potential energy। बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, तो हम लिखेंगे this work done is stored in the form of potential energy। एकदम सिंपल सा है, ध्यान दो। this work done is stored in the form of potential energy of system of charges। एकदम सिंपल सा है बच्चों, ध्यान दो। therefore पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U is equals to W and W is equals to what, KQ1 Q2 divided by R12 plus KQ1 Q3 divided by R13 plus KQ2 Q3। एकदम सिंपल सा है। You can see that this is the potential energy of system of three charges in the absence of external electric field। लिखेंगे this is the expression of or expression for potential energy of system of three charges in the absence of external electric field। एकदम सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो उसके लिए भी वापस फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हर बार ऐसे सब वर्क डन फाइंड करके प्लस करना पड़े तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बोलोगे सर ऐसा हम हर बार कैसे डिराइव करेंगे? तो कोई तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दो भाई, कि जैसे हम अगर 5 चार्जेस दिए होंगे, 4 चार्जेस दिए होंगे तो वो सब फाइंड कर पाएंगे। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द फॉर्मूला? इट्स वेरी सिंपलेस्ट। सी हियर, लेट अस कंसिडर देयर इज अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। देख सकते हैं, कंसिडर सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। मान लो दिस वन इज चार्ज Q1, दिस वन इज चार्ज Q2, दिस वन इज चार्ज Q3, this one is charge Q4। we don't know about where they are placing, but the distance between subsequent charges are given, like the distance between 1 and 2 is considered as R12। let us consider, we are labeling them। distance between Q2 and Q3 is R23, distance between Q3 and Q4 that is R34, distance between 1 and 4 that is R14,
distance between 2 and 4 R24, let us consider, and distance between 1 and 3, that is R13. These are the some distances between the charges. 1 और 2 का डिस्टेंस, 2 और 3 का डिस्टेंस, 3 और 4 का डिस्टेंस, लाइक सारे चार्जेस का इंटरमीडिएट डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, गिवन होगा, वेदर इट इज स्क्वायर, वेदर इट इज रेक्टेंगल, या कोई और ऐसा फिगर दिया होगा जिसके अंदर हम सारे चार्जेस के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो मान लो ऐसा कुछ दिया होगा, एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। अब लिखना कैसे है, बहुत सिंपल सा है बच्चों। ये जो हिंट दे रहा हूँ ना, वो जेई नीट सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हो, कितने भी चार्जेस दिए होंगे आप कर सकते हो। जैसे मैं कभी एग्जाम्पल दूंगा आपको, वैसे हम सॉल्व भी करके देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो सी हियर, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ this system of charges is U is equals to, देखो पैर बनाओ, बहुत सिंपल सा है। We know about the potential energy due to 2 charges, the system of 2 charges। अगर 2 चार्जेस होगा, देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ बच्चों, ध्यान देना। ये हो गया चार्ज Q1, ये हो गया चार्ज Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज K Q1 Q2 बाय R। एकदम सिंपल सा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, हमें क्या करना है, पैर बनाना है। देखो एकदम सिंपल सा है, देयर आर 4 चार्जेस, सो मेक द पैर। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्ज 1 and 2, पहले 1 के साथ सारे चार्जेस का पैर बना लो, 1 2 1 3 1 4, सिंपल सा, U12 प्लस U13 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 4 प्लस, चलो 1 2 1 3 1 4 हो गया। अब 2 के साथ पैर बनाओ, 2 के साथ पैर बनाओगे तो 2 1 इज सेम एज 1 2। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो वो सिस्टम को हम वापस रिपीट में नहीं लिखेंगे। सो दैट्स वाई अगर हम 2 के साथ पैर बनाएंगे, 2 1 इज सेम एज 1 2, सो डोंट राइट 2 3, 2 2 तो नहीं हो सकता, इट्स द सेम चार्ज। हमें सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, मतलब एक ये Q2 होगा और डिफरेंट चार्ज है Q3, सो U23, समझ रहे हो ना, पोजीशन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चाहिए ना, मतलब Q2 नहीं ले सकते, 2 3 2 4, सो U24। वापस देखो, फर्स्ट वी हैव टू मेक द पेयर विथ Q1, 1 2 लिख लिया, 1 3 यस, 1 4 डन, करेक्ट, 2 1 is same as 1 2, so don't repeat, 2 3 yes, 2 4 done। now because of 3 3 1 3 1 3 2 3 4 ऐसे होगा ना, तो 3 1 is 1 3 repeated, 3 2 is same as 2 3 repeated, so don't write, now 3 4, so U34, this is the one kind of simplest formula। हमने क्या किया, सबका पैर बना के सारी एनर्जी को प्लस कर लिया। अब U12 का फॉर्मूला कैसे होगा, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, सिंपल सा है। 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन चार्जेस का और डिस्टेंस बिटवीन देम जो हमने लिया है 1 2, सेम। चलो यहाँ पे 1 3 का क्या होगा, K 1 3 ना, तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, सिंपल सा है, देखो वेरी सिंपलेस्ट। चलो ये 1 4 का कैसे होगा, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14, हियर R14 इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4, 1 and 4 का डिस्टेंस हमने देखो R14 लिया है। सिमिलरली चलो 1 4 का हो गया, 2 3 का कैसे बनाओगे, K Q2 Q3, 2 3 मतलब Q2 Q3, हमने पैर ही वैसे बनाया था, R23 प्लस क्या बनेगा, K Q2 Q4 डिवाइडेड बाय R24, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट इज K Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34। दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर डिस्टेंस दिया होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया होगा, तो यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, 3 चार्जेस था ना, तो U12 जो हो देखो Q1 Q2 बाय R12, 1 3 1 के साथ पैर बनाया हुआ है, 2 के साथ पैर बनाया हुआ है, वही हो गया। तो ये हमने एक सिंप्लीफाइड फार्मूला डिराइव किया, एक टेक्निक ढूंढ लिया कि कैसे लिखना है, कैसे हमें एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है ना बच्चों।
ये था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इन दैट केस हाउ विल वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, वो हम अभी देखने वाले। तो सबसे पहले ये वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लो, ठीक है ना बच्चों। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा और उसके अंदर हम किसी चार्ज को लेके आएंगे, तब कैसे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। एकदम सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। हमें एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, इफ़ यू वांट टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम सिस्टम से फाइंड करेंगे तो कुछ ऐसे करना होगा, वर्क डन फाइंड करो, वर्क डन टोटल समेशन ले लो एंड यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही था ना। एंड वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ सर्टेन पॉइंट। जिस पॉइंट का वर्क डन फाइंड करना है उसका ही पोटेंशियल चाहिए हमें, समझ रहे हो ना बच्चों। एकदम सिंपल सा है। तो देखो, मान लो दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर कंसिडरिंग दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड in which we will place two charges, we will find the potential energy of two charges, ठीक है ना बच्चों। एकदम सिंपल सा है। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसिडर, एंड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। अगर ये ए पॉइंट होगा और एट दिस पॉइंट ए द पोटेंशियल कोई ना कोई होगा, बिकॉज दिस इज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल मिलने ही वाला है। तो मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ए कंसिडर किया है जहाँ पे हम Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आने वाले हैं। सो दैट मीन्स अगर हम Q1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो लिखेंगे द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, द पोटेंशियल, वही सेम मेथड, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए is considered as VR1. Let us consider potential at point A, VA is equals to V at R1. कंसिडर कर लेंगे, एकदम सिंपल सा है। सो therefore the work done to bring, क्योंकि Q1 को ला रहे हैं ना हम, to bring, अगर Q1 को लाना होगा तो we have to do some kind of work. The work done to bring a charge Q1 from infinity to point A is W1 is equals to, एकदम सिंपल सा है, W1 is equals to Q1 into potential at point A. So Q1 and potential at point A is equal to V at distance R1. कंसिडर कर लेंगे, दिस वन इज W1। यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं मिला। प्रीवियस जो थियरी देखा हमने उसके अंदर हमने वर्क डन को जीरो ले लिया था। वाई? बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, एंड एट पॉइंट ए द पोटेंशियल इज कंसिडर, हमने डिनोट कर लिया ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, V एट R1, V एट डिस्टेंस R1, ऐसा हमने कंसिडर किया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल दिया होगा तो वो हम लेंगे, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज V R1, तो वही लिखेंगे। चलो अब इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल कंसिडर अनदर पॉइंट दैट इज B, एंड एट दिस पॉइंट we will brought another charge that is Q2, and this point B is at distance R12 from the point A। मतलब अब B पॉइंट के पास पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा, एंड B पॉइंट के पास पोटेंशियल ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगा, ठीक है ना बच्चों। तो एकदम सिंपल सा है, लिखेंगे द पोटेंशियल at point
B, the potential at point B is VB is equals to the potential due to external electric field. तो हम R2 लेंगे यहाँ पे, तो potential due to external electric field plus potential due to this charge Q1. और हमें पता है किसी भी पॉइंट चार्ज से सर्टेन पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस r होगा वहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. मतलब ये VR2 दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें ये Q1 की वजह से ही मिलने वाला है. तो दैट्स वाई KQ1 द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज इज व्हाट R12. एकदम सिंपल सा है. एंड ड्यू टू दिस potential, the work required or the work done to bring charge Q2 from infinity, from where? Infinity, from infinity to point B is given by W2 is equals to जिस चार्ज को ला रहे वो अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज VB. चलो VB का वैल्यू पुट करेंगे Q2 इंटू VB इज व्हाट VR2 इन ब्रैकेट वी विल राइट VR2 प्लस KQ1/R12. So therefore the net work done, this net work done is stored in the form of potential energy. So the net work done is W is equals to W1 plus W2. W1 is equals to what? Q1 into VR1 प्लस W2. चलो मल्टीप्लाई करो एकदम सिंपल सा है. Q2 इंटू VR2 प्लस Q2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा KQ1 Q2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो KQ1 Q2 बाय R12. जब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था तब हमें वर्क डन सिर्फ इतना मिला था, दो चार्जेस का. आप थोड़ा वीडियो रिवर्स जाके देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों. लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एक्स्ट्रा वर्क डन इज एडेड. दिस एक्स्ट्रा वर्क डन इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देयरफॉर this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. Therefore potential energy of system of two charges in presence of external electric field is what? Q1 into VR1, that is Q1 and potential at point A, that is at distance R1, plus Q2 into potential at point B plus KQ1 Q2 by R12. Extra work done is added due to what? External electric field. ठीक है ना बच्चों, इट्स वेरी सिंपलेस्ट. अगर थर्ड चार्ज को लेके आना हो तो उसके लिए हम अलग से वापस वर्क डन फाइंड करेंगे. ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा है. दिस इज द potential, electrostatic potential energy in the presence of electric field. एक एक्सटर्नल एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा हमने, ठीक है ना बच्चों. सो ये था पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक, बहुत सिंपल सा है. ठीक है बच्चों, तो कॉपी डाउन दिस टॉपिक. हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को ही कंटिन्यू करेंगे, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल सा टॉपिक है. ठीक है बच्चों. अच्छा बच्चों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले. ठीक है ना बच्चों, ताकि मेरे नए लेक्चर्स और नए टॉपिक का आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए. ठीक है बच्चों, बाय.